فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کی بھاری تعداد انتخابی دوڑ میں شامل 31 قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے 37 خواتین کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ قومی اسمبلی کے لیے 17، صوبائی اسمبلی کے لیے 20 خواتین سامنے آئیں، 4 کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 17 خواتین میدان میں اتریں۔ این-95 سے سعیدہ ہما بطول، این-96 سے سعدیہ اختر امیدوار ہیں، این-97 سے راحیلہ شہادت عائشہ رجب، رابعہ علی امیدوار، این-99 سے ادیبہ کوثر اور نیہا جاوید امیدوار ہیں، این-100 سے سدرہ سعید بندیشہ، عروج امتیاز گل، نبیلہ ثناءاللہ، سمیرہ نثار، مقدس احسن امیدوار ہیں، این-101 سے کومل ندیم سندھو، رشیلہ اسد، صدف رشید چودھری اور مصباح تبسم کے کاغذات منظور ہیں، این-102 سے روز جہانزیب گل، این-103 سے نازیہ خرم، آمنہ سرفراز، اقرا مبارک، فوزیہ اسکندر آجا امیدوار ہیں، این-104 سے سابق ایم پی فردوس رائے شگفتہ پروین امیدوار ہیں، پی-98 سے طاہر احمد کھچی نے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ خواتین اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے ہر چیز میں حصہ لے رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اپنی ٹیچرز ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈ جو لائف ہے اس کے اندر بھی اب خواتین آن لائن بزنسز کر رہی ہیں۔ تو یہ چیز میں انشاءاللہ جو ہمارے 2024 کے یہ الیکشنز ہیں یہ اس کے لیے ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان مضبوطی کی طرف جا رہا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں 20 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پی-99 میں ہما بطول امیدوار ہیں، پی-101 سے زریاب سعدیہ اختر، عذرا پروین کے نام سامنے آئے ہیں، پی-102 سے فردوس رائے، پی-103 سے سعیدہ عباس خیل، رفت پروین مد مقابل ہیں، پی-105 سے نصرت پروین مقدس خالد کے کاغذات نامزدگی منظور ہیں، پی-107 سے اقرا ریاست عظمیٰ تبسم سمیرہ کا نام سامنے آ گیا، پی-109 سے کومل ندیم سندھو، عروج جہانزیب گل کے نام منظور، پی-111 سے رشیلہ اسد امیدوار ہیں، پی-112 سے رقیہ شگفتہ پروین اور تہمینہ ریاض امیدوار ہیں، پی-113 سے نور النساء، پی-114 سے سمیر رشید چودھری امیدوار ہیں، پی-115 سے مہوش منیر، پی-116 سے اقرا حسین قرۃ العین امیدوار ہیں، پی-117 سے آمنہ سرفراز، پی-118 سے نیمل آزاد اور اقرا امیدوار ہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد عام انتخابات میں سامنے آ گئی۔ اب دیکھنا ہوگا سیاسی جماعتیں کتنے ٹکٹس تقسیم کرتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ میں الیکشن کا دنگل سجنے کو تیار، مردوں کے ساتھ خواتین امیدوار بھی متحرک۔ جنگ کی 3 قومی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 10 خواتین انتخابات میں حصہ لیں گی۔ دیکھتے ہیں وسیم عزیز کی رپورٹ۔ جنگ سمیت ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ جنگ میں 3 قومی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 10 خواتین سامنے آئیں گی۔ این-108 سے غلام بی بی بروانہ، این-109 سے سید سغرا امام اور غلام بی بی بروانہ میدان میں اتریں گی۔ این-110 سے سائمہ اختر بروانہ اور گلناز علی مد مقابل ہوں گی۔ صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر 6 خواتین امیدوار الیکشن لڑنے کو تیار۔ پی-125 سے نیلم سیال، پی-126 سے غلام بی بی بروانہ الیکشن میں حصہ لیں گی۔ پی-127 سے راشدہ یعقوب، پی-128 سے کوئی امیدوار سامنے نہ آ سکیں۔ پی-129 سے سائمہ اختر بروانہ الیکشن لڑنے کو تیار۔ پی-130 سے ختیجہ شہباز اور گلناز الیکشن کی دوڑ میں شامل، جبکہ پی-131 سے کوئی خواتین الیکشن لڑنے کو آمادہ نہیں۔ جنگ کی گھریلو خواتین کی جانب سے خواتین امیدواروں کی الیکشن میں حصہ لینے کے اقدام کو سراہا گیا۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41، جنگ۔ روبوٹکسنگ میں انتخابی دنگل کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی میدان میں آ گئیں۔ روباٹ ضلع سے 11 خواتین امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گی۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ۔ ضلع سے 13 خواتین امیدواروں نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جن میں سے 2 کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ سابق چیئرپرسن ضلع کونسل فوزیہ خالد وڑائچ این-105 گوجرا سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گی۔ سابق ایم پی اے نیلم جباز چودھری این-106 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیں گی۔ این-106 سے ہی سابق ایم این اے جنید انوار کی اہلیہ صوبیہ جنید کی کاغذات نامزدگی بھی منظور، وہ کورنگ امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ این-107 سے کمالیہ سے سابق ایم پی اے اور صوبائی وزیر آصفہ ریاض کے مد مقابل ساجدہ کاٹیا ہوں گی۔ آصفہ ریاض ماضی میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئی تھی۔ پی-122 سے عالیہ نور چودھری، نوشین نصرت اور مجاہدہ جبار الیکشن میں حصہ لیں گی۔ آصفہ ریاض، نازیہ راحیل گجر اور ساجدہ کاٹیا پی-123 سے الیکشن لڑیں گی۔ پی-124 سے پیر محل میں سابق ایم پی اے سونیا رضا کا مقابلہ اپنی سوتیلی والدہ سائمہ رضا سے ہوگا، لیکن دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ سونیا رضا شاہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر
پر MP منتخب ہوئی تھیں۔ PP 124 میں سونیا رضا کی حقیقی والدہ شمیم فاطمہ اور بیٹی فاطمہ اکبر بھی الیکشن لڑیں گی، جن کے کاغذات کورنگ امیدوار کے طور پر جمع کرائے گئے تھے۔ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، توبہ ٹیک سنگھ۔ چنیوٹ میں 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں سے 5 خواتین امیدوار آمنے سامنے۔ پانچوں خواتین کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل بھی مکمل۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں 31 دسمبر کو دائر ہوں گی۔ تفصیلات بابر منیر کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں سے 5 خواتین امیدوار سامنے آ گئیں۔ پانچوں خواتین کی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ NA 93 سے سابق MNA غلام بی بی بھروانہ، PP 95 سے اقصی لالی اور ریحانہ جہانگیر آزاد امیدوار کے طور پر مد مقابل ہوں گی۔ PP 97 سے پیپلز پارٹی کے فخر النساء اور سابق MPS سلیم بی بی بھروانہ بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گی۔ عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ 31 دسمبر سے شروع ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر۔ آرؤز کے فیصلوں پر اپیلوں کا عمل 3 جنوری 2024 تک مکمل ہوگا۔ اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری 2024 تک فیصلہ کرے گا۔ امیدواران کی نظر ثانی شدہ فہرستیں 12 جنوری کو آویزاں ہوں گی۔ 13 جنوری کو انتخابی انشان الاٹ کیے جائیں گے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41، چنیوٹ۔ عام انتخابات 2024 کی بڑی معرکہ آرائی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو گرین سگنل مل گیا۔ PTI کے پرانے چہرے الیکشن سے آؤٹ۔ 8 نمایاں امیدواروں کے ساتھ 89 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ عمیر عظمت کی رپورٹ۔ ریٹرننگ افسران نے قومی و صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی۔ لیگی امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ PTI سے تعلق رکھنے والی 8 بڑی شخصیات سمیت 99 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ PP 99 سے کاشف بشیر محمد افضال کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ PP 111 سے محمد شہزاد اور اسد معظم کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ PP 108 سے محمد منیر خان، محمد مقصود الیکشن سے آؤٹ۔ NA 96 سے رائے حیدر علی خان، محمد احسان علی رانا کے کاغذات مسترد۔ NA 104 سے محمد محمود وحید احمد، محمد ارشاد کو بھی گرین سگنل نہ مل سکا۔ PP 111 سے محمد شہزاد اور اسد معظم، PP 112 سے افتخار حسین، محمد عبداللہ خان دمر، رقیہ، محمد شہزاد، اسد محمود کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ PP 114 سے محمد عبداللہ خان، محمد کامران، محمد ندیم، عذرا نسیم، سید مظفر حسین، سجاد چیمہ بھی انتخابی عمل سے آؤٹ۔ PP 102 سے اللہ نواز اور محمد اختر، PP 107 سے عمر فاروق اور محمد زبیر احمد کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ PP 118 سے ذوالفقار منہاس، محمد اصغر، منیر احمد بابر، چودھری عمران اقبال کالو، شفیق احمد، محمد فیصل انور، خیال احمد، محمد اسلام، میاں محمد انور، محمد فیصل انور کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی بڑی تعداد کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ آزاد علی تبسم، طلال چودھری، نواب شیر وزیر کے کاغذات نامزدگی منظور۔ شیخ یوسف، میاں عبد المنان، علی گوہر بلوچ، جعفر علی ہوچا، صفدر شاکر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ شہباز بابر، رو کاشف، عارف گل، رانا ثناء اللہ، رانا احمد شہریار خان، حاجی اکرم انصاری، عابد شیر علی، ملک نواز، طاہر جمیل کو بھی گرین سگنل مل گیا۔ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق ممبران پنجاب اسمبلی فقیر حسین ڈوگر، رانا علی عباس خان، مہر احمد رشید، سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد، رانا احسان افضل، اظہر جاوید گجر کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر چوہدری عبد الرحمان کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ بے لگام ڈالر، پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگی بجلی نے رواں سال انڈسٹری کی کمر توڑ دی۔ کاروبار ڈوب گئے۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں کی دہائی، بولے غیر یقینی صورتحال نے کاروبار تباہ کر دیے۔ انڈسٹری اور فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان، پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگی بجلی رواں سال انڈسٹری کے لیے برا خواب بن گیا۔ خام مال کی آسمان کو چھوتی قیمتوں سے متعدد چلتے کاروبار ڈوب گئے۔ انڈسٹری اور فیکٹریوں کو تالے لگ گئے۔ سازگار ماحول کی عدم فراہمی سے لوکل اور ایکسپورٹ انڈسٹری شدید متاثر ہوئی۔ سال 2023 میں پیٹرول 214 روپے سے 331.38 روپے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ بجلی کے بھاری بلوں نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ صنعتکار بجلی 70 روپے فی یونٹ کے حساب سے خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارا را مٹیریل انتہائی مہنگا ہو گیا۔ جو بجلی تھی وہ 25 روپے یونٹ ایک سال میں بڑھی ہے۔ اب 25 روپے یونٹ کے ساتھ ہم کوئی بندہ کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ اب ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دیکھ لیں، اس میں آپ لوکل انڈسٹری دیکھ لیں، آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں، ساری ہی نیچے آئی ہیں۔
डॉलर की कीमतों ने कमजोर रुपए की दुर्गत बना दी, जिससे महंगाई का वो तूफान आया जो साल हर साल से लगी फैक्ट्रियों, कारखानों और मिलों को बहा ले गया। साल 2023 में डॉलर भी पीछे न रहा, 253 से शुरू होकर 315 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। आप देख लें कि कोई भी चीज़ में जब इंटरेस्ट की बात की जाती है तो हमारे बैंक्स कहाँ पे खड़े हैं। तो डॉलर तो डेफिनेटली 62 टू 64 रुपीज़ का इसमें डिफरेंस आया है डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो हमारा इन्फ्लेशन रेट इस हद तक बढ़ गया कि पैसे की बिल्कुल कदर नहीं है इस टाइम, और हमारी आलमी मंडी में ये हैसियत है कि हमारे पैसे पे कोई एतमाद करने के लिए राज़ी नहीं है। रवां साल डॉलर 62 रुपए, पेट्रोल 53 रुपए फी लीटर, जबकि बिजली 30 रुपए फी यूनिट महंगी हुई। सनतकारों ने साल 2023 को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और शदीद मंदी का साल करार दिया है। एक तरफ तो एनर्जी की बढ़ती हुई कीमतें रहीं, तो दूसरी जानिब खाम माल की तरसीलात में बेजा रुकावटें रहीं, जिसकी वजह से सनतकारों के मसाइल 2 गुना बढ़ गए। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। कभी बिजली की कीमत में इजाफा तो कभी महकमा माहौलियात की कार्रवाई। साल 2023 फैसलाबाद की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मायूस कुन रहा। महंगी बिजली और गैस के बायस 60% प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां बंद हो गई। साल 2023 फैसलाबाद की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मायूस कुन रहा। महंगी बिजली और गैस के बाद 60% प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां बंद हो गई। चेयरमैन एप्टमा हाफिज मोहम्मद असगर कादरी ने कहा कि इतनी मालियत की फैक्ट्रियां नहीं जितने के टैक्स नोटिस आ रहे हैं। जो इंडस्ट्री लगाकर अपने मुल्क के जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बचा रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं वो भी ना बचे, जो रहती है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसे हैं कि रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे की ज़रूरत है। सनतकारों का कहना था कि बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने कमर तोड़ दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। पहले महंगी गैस और बिजली की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल था, अब लोकल जरूरियात पूरी करना भी मुमकिन नहीं रहा। जो चल रही है वो किस तरह सर्वाइव कर रही है, कोई पहले बंद हो रहा है, कोई बाद में बंद हो रहा है, किसी ने पीछे किसी ने बाद में। क्यों? हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। कुछ बाहर से ऑर्डर आते थे, वो माशाल्लाह बिजली और गैस इतना महंगा कर दिया है, वो इस हिसाब से कर दिया कि पहले 9 सेंट में मिलता था, वो भी खत्म कर दिया है। सनतकार कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से 2023 में इंडस्ट्री बंद हुई। जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो भी सिर्फ मजदूर की बका के लिए चला रहे हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2023 चिन्योट के काश्तकारों पर भारी रहा। आसमान से बातें करती खाद की कीमतें और मसनूई बहरान। महंगी बिजली हो या नाक़िस अद्वियात की फराहमी, काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकें। देखते हैं चिन्योट से ये रिपोर्ट। खाद का बहरान साल 2023 में भी चिन्योट के काश्तकारों के लिए वबाले जान बना रहा। काश्तकार खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। तो कभी जाली अद्वियात की फराहमी का रोना रोते रहे, कभी बिजली महंगी तो कभी खाद ब्लैक में मिलने पर सरापा एहतजाज। मुतलका इदारों की कारकर्दगी अमली इक़दामात की बजाय सिर्फ दावों तक महदूद रही। खाद न मिलने से गन्ना, कमाद, आलू, मटर और दीगर फसलों की पैदावार मुतासर हुई, जबकि महंगी जाली अद्वियात ने रही सही कसर निकाल दी। तमाम मेहनत और मुश्किलात के बाद भी किसानों को अपनी फसलों की मुनासिब कीमत न मिलने का शिकवा रहा। गुज़श्ता 2 साल से मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ज़रई शोबे का हुआ। बेवक्त की बारिशों, सैलाबों और माहौलियाती असरात की सितम ज़रीफी का सताया हुआ किसान वैसे ही बदहाल है, जबकि रही सही कसर खाद, तेल और बिजली के नर्ख में बेपनाह इजाफे से निकल जाती है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। 22% की बुलंद तरीन शरह सूद ने महंगाई को दावत दे दी। तजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई। नए साल में शरह सूद में नुमाया कमी की जाए, सनतकारों ने हुकूमत से अपील कर दी। पाकिस्तान में शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से महंगाई के लिए रास्ते हमवार हुए। ताजर हजरात कहते हैं कि तिजारती सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं। हुकूमत से अपील है शरह सूद कम की जाए। मेरा जितना लाइजन स्टेट बैंक और इन अदारों के साथ रहा है, स्टेट बैंक बहुत अच्छी स्कीमें बनाता है, लेकिन तमाम बैंक उसको फेल कर देते हैं। कोई इनसे कहें कि आप हमें कोई डाटा दे दें कि जिसमें आपने कोई आम दुकानदार को, आम बंदे को, आम घर वाले को, छोटे लोगों को कोई एक इन्होंने लोन दिया हो। राना सिकंदर ने मजीद कहा कि शरह सूद में नुमाया कमी हो तो निजी शोबे को आसान और बिला सूद सस्ते कर्जे फराहम हो सकेंगे। सारी स्कीमें जो है ये अशराफिया के लिए है, माफियाज के लिए है, और यहाँ और गवर्नमेंट खुद कर्जे लेती है। यहाँ किसी आम दुकानदार को, एसएमई सेक्टर को कहीं पे भी इससे कोई फायदा नहीं मिलता। सनतकार कहते हैं हमें मरकजी बैंक की पॉलिसियों पर एतराज नहीं, मगर दर हकीकत मतहत मालियाती इदारे स्टेट बैंक की पॉलिसियों को हवा में उड़ा देते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसला आबाद में मरीजों के लिए साल 2023 खुशाइंद रहा। अरसा दराज से शुरू होने वाले मंसूबे पाया तकमील तक पहुंच गए। टीचिंग अस्पतालों में एमओ का काम शुरू। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मुतहत अरसा दराज से शुरू मंसूबा रवां साल मुकम्मल कर लिए गए। जनरल अस्पताल समनाबाद में 225 बेड्स फाल हुए। इसी तरह नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में 110 बेड्स फाल किए गए। दोनों अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दर्जा भी दे दिया गया, जबकि तहसील हेडक्वार्टर्स मुंदरी, तांदलियावाला, जड़ावाला और चक जुमरा के अस्पतालों में 60 से 100 बेड्स तक का इजाफा किया गया। रूरल हेल्थ सेंटर खुलने वाला की THQ अस्पताल में अपग्रेडेशन शामिल है। हमारे जो अस्पतालों के मंसूबे 2016 से पेंडिंग थे, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की शुक्र से इस साल में हमने कंप्लीट किए हैं। जो बेसिकली उसमें हमारे मंसूबा जात थे वो समनाबाद हॉस्पिटल और हसीब शहीद हॉस्पिटल, ये THQ लेवल से आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे आ गए हैं। समनाबाद 250 बेडेड हो गया और हसीब शहीद 110 बेड पे आ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में मुखीर हजरात के ताउन से 60 बेड्स के इजाफे से चौथी मंजिल तमीर हुई। अलाइड अस्पताल 1 और 2 की खस्ता अली इमारतों की तमीर और मरम्मत अरबों की लागत से तामीराती काम शुरू करवाए गए। हमने पूरा डेंटल कर दिया है और उसके अलावा फिजियोथेरेपी वहाँ से हम बर्न सेंटर की बेसमेंट में ले गए हैं और बाकी जितनी भी OPD है उसको प्रॉपर तरीके से हमने रीवैम्प किया है कि हर डिपार्टमेंट से पहले एक फिल्टर क्लिनिक होगा और फिल्टर क्लिनिक में पेशेंट आएगा। चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद रवां साल भी कौमती तवज्जो के मुंतजिर रहे। महकमा सेहत हकाम को इस तरह भी तवज्जो देना होगी। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 न्यूज़, फैसलाबाद। लेबर कवानीन पर अमल दरामद खुशहाल मुल्क की जमानत। महकमा लेबर उजरत कानून पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद में 2023 के दौरान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 फैक्ट्रियां बंद हुई। कितनी दुकानों की इंस्पेक्शन हुई, महकमा लेबर के जुर्माने, दावे या हकीकत, जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा लेबर सनती शहर में मजदूरों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। साल 2023 में फैक्ट्रियों और कारखाना जात में मजदूर तबका को दी जाने वाली तनख्वाहों और उजरतों बारे रिकॉर्ड की पड़ताल। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। डायरेक्टर लेबर राय यासीन खरल कहते हैं मजदूरों का इस्तेहसाल, कम से कम उजरत की फराहमी, लेबर कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। बगैर नोटिस निकाले जाने वाले मुलाजमीन को कानूनी मदद फराहम की गई। ऐसी 6200 फैक्ट्रियों को कानून के दायरे में लाया गया। साल 2023 में मजमूई तौर पर 1840 फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन की गई। 9,40,000 से ज्यादा जुर्माना किया गया। सारे सिस्टम में ऑटोमाइजेशन हुई है तो हमारा सिस्टम जो है ना वो रियल टाइम है। हमारे ऑफिसर जो है ना वो ऑन द स्पॉट जाके वो उसको इंस्पेक्शन करते हैं और वो डिजिटलाइज सिस्टम है हमारे पास। अब सेकेंडली हमने फैक्ट्रीज में जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ से 1800 के करीब जो है हमारी इंस्पेक्शंस हैं और उसमें कोई जो है ना अगर डिफरेंट लॉ, अब मैं जो बता रहा हूँ मैं पर फैक्ट्री आपको नहीं बता रहा, डिफरेंट लॉज के उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी आता है, उसमें मिनिमम वेजेस भी आता है, उसमें दीगर लॉज भी हैं। मुख्तलिफ छोटी बड़ी 13,540 दुकानों की इंस्पेक्शन। 8,310 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 11,53,000 के करीब मुख्तलिफ दुकानों को जुर्माने किए गए। मासूम बच्चों से जबरी मुशक्कत कराने वालों के खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत 210 मुकदमात दर्ज कराए गए। हमारे टोटल प्रोसिक्यूशंस हैं 6,200, ये मुख्तलिफ इदारा जात के खिलाफ जो किए गए। इसी तरह जो अगर आप देखें उसकी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो उसमें कोई 13,000 के करीब हमारी इंस्पेक्शन। आपको पता है उसका तिजारती शहर है हमारा, तो बहुत ढेर सारा एरिया जो तिजारती है उसमें भी खातिर खा इसी तरह कोई 8300 के करीब हमारे ना प्रोसिक्यूशन है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट लॉज हैं। मजदूर तबका किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुकाम ने मजदूर को कानून के मुताबिक मराद दिलाने और मुआशी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए इकदाम जारी रखने का अज़म का इजहार किया है। कैमरामैन इमान भट्टी के साथ फसील नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2023 में सनती शहर में टैक्स वसूलियों का रिकॉर्ड इजाफा। जुलाई से दिसंबर तक 40% जायद टैक्स जमा। टैक्स गुजारों को 43% जायद रिफंड अदायगियाँ। 30 अरब के टैक्स चोरी केसेस पकड़े गए। साल 2023 टैक्स आमदन के हवाले से हौसला अफजा रहा। FPR के एलान शुमार के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले इसी अरसे में टैक्स वसूली 40% इजाफे से 53 अरब रुपए रही, जिसमें इनकम टैक्स वसूली 35 अरब रुपए जबकि सेल्स टैक्स वसूली 18 अरब रुपए रही। टैक्स गुजारों को फंड्स अदायगियों में भी गुज़श्ता साल के मुकाबले 43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह रिफंड्स की जो बात है वो हमने टैक्स पेयर्स को 16 अरब के करीब रिफंड्स दिए हैं, जो कि पिछले साल से 43% ज़ायद है। ये हमारी जो पोजीशन है जुलाई से लेकर अब तक। जो दिसंबर की बात है
दिसंबर के महीने के लिए जो हमें टारगेट दिया गया है वो 9,800 मिलियन का दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने साल 2023 के आखिरी 6 महीनों में 1,14,000 नए लोगों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया। 88,000 नए अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए, जबकि जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए टैक्स चोरी करने के मुतअद्दिद केसेस पकड़े गए। इन केसेस में मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए की टैक्स चोरी की गई थी। और जो रिफंड्स की बात है तो हमने दिसंबर के महीने में अब तक 5,700 मिलियन के रिफंड्स दे दिए हैं। तो रिफंड्स के मामले में एफबीआर की पॉलिसी बहुत लिबरल है और इसका मेन मकसद जो है वो फैसलाबाद चूँकि एक्सपोर्ट्स का हब है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी तरजीह है। कस्टम हुक्काम ने साल 2023 के दौरान स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3.5 अरब रुपए से जायद मालियत के सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई। स्मगल शुदा सामान पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी चोरी की गई थी। एफबीआर ने जुलाई से दिसंबर तक टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 40% इजाफा किया। 30 अरब रुपए की टैक्स चोरियां पकड़ी गईं। उसके साथ साथ 1 लाख से जायद नए लोग टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किए। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। तरक्याती कामों के हवाले से 2023 चिन्योट के लिए बेहतरीन करार। वज़ीर आला की कावश से शहर में मुतादिद मंसूबे मुकम्मल। देही इलाकों के तरक्याती मंसूबों पर भी काम तेजी से जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साल 2023 चिन्योट के लिए तरक्याती कामों के हवाले से बेहतरीन रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स, टीएचक्यू भुआना, साहियावाला रोड, भुआना तामीपुर रोड और दीगर नाली सोलंग सीवरेज समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर काम का आगाज हुआ। डीएचक्यू चिन्योट के 125 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की 634 मिलियन की रकम में से तकरीबन 371 मिलियन रुपए जारी हुए और यूं 58% काम मुकम्मल कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का 400 मिलियन के प्रोजेक्ट में से 140 मिलियन से 35% काम मुकम्मल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की 2.25 अरब रुपए की स्कीम से 1 अरब 37 करोड़ रुपए की रकम से 78% काम मुकम्मल किया गया, जबकि टीएचक्यू भुआना में 357 मिलियन से 87% काम मुकम्मल कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पोर्टफोलियो की जहां तक बात है तो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है वो भी ज़ेर तामीर है और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 1 साल के अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है ये मुकम्मल हो और उसके साथ साथ जो हमारा उसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, डेफिनेटली जी हमारा जो एग्जिस्टिंग डीएचक्यू है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स हैं और क्योंकि ओवर द ईयर्स हमारी पॉपुलेशन ग्रो करके अराउंड 1.6 मिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी काविश से चिन्योट के सबसे खराब साहियावाला और पिंडी भटिया रोड की तामीर भी मुकम्मल की गई। जिला कौंसिल की 50 स्कीमों पर भी काम जारी। आने वाले दिनों में जी हमारे फेज़ 2 में जो हम BHUs को और जो RHCs हैं उनको रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। उनका सर्वे करवा लिया है, असेसमेंट हो गई है मिसिंग फैसिलिटीज़ की और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 2 से 3 माह में इट इज़ सब्जेक्ट टू फंडिंग, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनकी भी रिहेबिलिटेशन और रीवैम्पिंग जो है हम इंश्योर करें। इंतखाबात के सिलसिला में बाज़ तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गई, जिन्हें इजाजत मिलते ही दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। ज़िले ज़कात और अशरा कमेटी शफाफियत के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए कोशा। फैसलाबाद की ज़कात और अशर कमेटी ने 2023 में कितने फंड हासिल किए और कितने फंड मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारू। ज़िले ज़कात व उशर कमेटी ज़कात के तरीक़ाकार को शफाफ बनाने और मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के अमल को फ़ाल और मौसर बनाने के लिए सरगर्म। साल 2023 में मजमूई तौर पर ज़िले ज़कात व उशर कमेटी को सूबाई ज़कात कौंसिल की जानिब से 38 करोड़ 75 लाख 28,489 रुपए के फंड्स मिले, जिनमें से 35 करोड़ 79 लाख 70,709 रुपए 17,747 मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। गुजारा अलाउंस में 22 करोड़ 83 लाख 17,565 रुपए के फंड्स मिले, जिनमें से 22 करोड़ 83 लाख 12,410 खानदानों में तकसीम किए गए। नबीना अलाउंस की मद में 1 करोड़ 45 लाख 29,300 रुपए के फंड्स मिले, जिनमें से 1 करोड़ 45 लाख 20,000 रुपए 605 नबीना अफराद में तकसीम किए गए। जिला में सेहत आमा की मद में 1 करोड़ 90 लाख 38,393 रुपए के फंड्स मिले,
जिनमें से 32,85,243 मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए। जनरल तालीमी फंड की मद में 1,32,40,987 रुपए मिले। 53,34,553 तलबा में तकसीम किए गए। दीनी मदारस को तालीमी फंड की मद में 1,32,40,987 रुपए मिले, जिनमें से 1,05,88,500 रुपए 1,139 मुस्तहिक तलबा में तकसीम किए गए। टेक्निकल तालीमी फंड की मद में 5,68,28,886 रुपए में से 5,28,96,225 मुस्तहिक तलबा में तकसीम किए गए। मैरिज अलाउंस के फंड्स की मद में 1,43,14,581 रुपए मिले, जिनमें से 1,43,572 मुस्तहिक खवातीन में तकसीम किए गए। जिले ज़कात उशर कमेटी के मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 2,80,17,790 रुपए मिले। डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर आसिफ शौकत मुस्तकबिल में भी मुस्तहिक अफराद तक इमदादी रकम को शफाफियत से पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। जी, ये 2022 में जिला ज़कात कमेटी को 38,75,00,000 वसूल हुआ और ये हमने इसमें से 35,89,00,000 जो तकसीम कर दिया। इसके अलावा हम भरपूर कैंपेन चला रहे हैं ताकि इसको ना डिजिटलाइज किया जा सके, लोगों को अवेयरनेस दी जा सके ज़कात के मुतल्लिक, और हम इसका दायरा कार कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, VTIs और इसके अलावा मदारिस सब बच्चों को जो डिजर्विंग है उनमें ज़कात डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़िले ज़कात उशर कमेटी को तमाम तर फंड्स मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए मजीद कोशिशें करना पड़ेंगी। कमोबेश 3 करोड़ रुपए की रकम ज़िले ज़कात उशर कमेटी के पास मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि निज़ाम ज़कात को मज़ीद बेहतर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन तक तमाम तर फंड पहुँचाए जाए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। साल 2023 अफसरान की बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। फैसलाबाद में कोई भी अफसर ज्यादा देर न टिक सका। अफसर शाही की आमद और रफ्त से तरक्याती मंसूबे मुतासर, कई नजरअंदाज, नतीजा आवाम को भुगतना पड़ा। किस कुर्सी पर कितनी बार तब्दीली हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2023 इख्तिताम के करीब रवां साल जिला फैसलाबाद में अफसरान की तब्दीली का साल रहा। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ से तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। रवां साल कमिश्नर जाहिद अवान रिटायर्ड तो शाहिद न्याज का तबादला हो गया। सिलवत सईद फैसलाबाद की तीसरी कमिश्नर बनी। डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे इमरान हामिद शेख, अली अन्नान कमर और अब अब्दुल्ला नैयर शेख तैनात हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रेवेन्यू और फाइनेंस एंड प्लानिंग भी दो बार तब्दील हुए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं वजीर आला की हिदायत पर 4 बड़े मंसूबे 1 से 2 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। जी, लाइट हॉस्पिटल के अंदर हमारे 2 मंसूबे चल रहे हैं। एक हमारा जो OPD है उसकी रिवैम्पिंग है और उसके ऊपर काम ज़ोर शोर से जारी है और उसमें कुछ वार्ड्स जो है वो इसी महीने जो है वो उनको हैंड ओवर भी हो जाएंगे। और दूसरा उसके अलावा वहाँ पे हमारी जो इमरजेंसी है उसकी रिवैम्पिंग जारी है, जो कि 1.2 बिलियन की बड़ी स्कीम है और उसमें काफ़ी ज़्यादा काम है। उसकी हमारी कोशिश है कि हम उसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो 31 जनवरी तक उसको डेडलाइन के मुताबिक उसको पूरा कर लें। DGPHA, DGFDA, MD वासा की नशिस्तों पर भी अफसरान 2 से ज़ायद बार तब्दील हुए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, सदर, जड़ावाला, झुमरा और तांदरियावाला भी 2 बार तब्दील हुए। अफसरान के तबादलों से मुतअद्दिद मंसूबे, कागजात और मीटिंग्स की हद तक महदूद होकर रह गए। जिला में तैनात होने वाले हर नए अफसर ने पहले से शुरू मंसूबों से हाथ खींच लिया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम, इंसदाद भिखारी स्क्वाड, जगमग फैसलाबाद समेत मुतअद्दिद मंसूबे अफसरान की तब्दीलियों की नजर हुए। हर बार तरक्याती मंसूबे ठप होने की कीमत फैसलाबादियों को ही चुकाना पड़ी। कैमरा टीम के हमरा वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। स्टेशन पर रश बढ़ा तो रेलवे इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली मुसाफिरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। खसारे में डूबा रेलवे, मुसाफिरों को बर वक्त टिकट फराहम नाकाम। स्टेशन पर रिजर्वेशन अमला और प्रिंटर की कमी, मुसाफिर टिकट के हसूल में रुल गए। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली मुसाफिरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। स्टेशन पर रिजर्वेशन अमला और प्रिंटर्स की कमी, खसारे में डूबा रेलवे, मुसाफिरों को बर वक्त टिकट फराहमी में नाकाम हो गया। सख्त सर्दी में मुसाफिर टिकट के हसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर है। रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए तवील कतारें लग गई। मुसाफिरों का कहना था ट्रेनों की ताखीर ने पहले ही परेशान कर रखा है, अब टिकट के लिए घंटों लाइन में ख्वार हो रहे हैं। महकमा रेलवे रिजर्वेशन पर अमला और प्रिंटर्स की कमी दूर करने के लिए इंतजामी अमूर बेहतर करें। इंतजामिया को इस बारे पे गौर करना चाहिए कि जो रश है और जो फैमिलीज के साथ लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हमारा फैमिली के साथ ऐसे रुकना सही नहीं है। मतलब इतना ट्रेन भी लेट आ रही है इस वजह से, और टिकट्स और लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी है, रश बहुत ज़्यादा है। तो इंतजामिया को इस चीज़ को देखना चाहिए कि इस चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करें। ट्रेन की जो टाइमिंग है वो टाइम पर आए, मुसाफिर को इतना बैठना ना पड़े, इतना लेट ना हो।
रेलवे स्टेशन पर टिकट जारी करने का सुस्त सिस्टम मुसाफिरों के लिए अजियत का बायस बन रहा है। अवाम के लिए मुयस्सर ये एक सस्ती सफरी सहूलत है, वो भी मसाइल में गिरी हुई है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार की रौनक में इजाफा, शहरी धड़ाधड़ गर्म मलबूसात, जूते और दीगर अशिया खरीदने लगे। कम आमदन वाले शहरी सस्ते कपड़े और जूतों की तलाश में सरगर्दा दिखाई दिए। फैसलाबाद में कड़ाके की सर्दी पड़ते ही गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया, जहां हर ब्रांड के गर्म कपड़े, जूते और दीगर अशिया दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं कि मौसम बहुत सर्द हो गया है, मार्केट में गर्म कपड़ों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जो परेशान कुन है। लंडा सस्ता हुआ और अच्छा हुआ, पायदार है, गरीब बंदे वास्ते ही बहुत कुछ है। लंडा बाजार में कोट, जूते, जैकेट और दीगर अशियाए जरूरत सस्ते दामों फरोख्त हो रही हैं। शहरी कहते हैं मतवसत तबका लंडे से खरीदारी कर सकता है, जबकि दुकानदार ने कहा कि लंडा बाजार में मुनासिब कीमत पर हर तरह के कपड़ों की खरीदो फरोख्त होती है। अच्छी चीजें मिलती है यहाँ पे और प्राइस भी अच्छे हैं। वो तेल है वो लगी हुई है, जैकेट है बच्चों की है, मुख्तलिफ रेट है, अच्छी वैरायटी हमारे पास होती है। लंडा बाजार में भी महंगाई से शहरियों की कुव्वते खरीद काफी हद तक कम हो गई है। पुराने कपड़े खरीदने के लिए भी शहरियों को कई बार सोचना पड़ता है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।